تو یہ پارٹی فنڈنگ کیس ہے، یہ فیصل واگڈ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صرف نظام کے ملبوسات جو ہے نا، جو کچھ نما لباس ہے، اس کو اتار کے نظام کو برہنہ کرنے کے لیے ہے۔ لیکن ووٹ کو پہرا دو، بالکل اس ملک میں ووٹ کو پہرا دینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ثابت کیا ہے کہ جی نااہلیت جو ہے وہ کرپشن سے زیادہ خطرناک ہے، اور آپ کے دور میں کرپشن بھی ہے اور نااہلیت بھی ہے۔ معلوم ہے، میں جانتا ہوں کہ کس نے کون سے اداروں نے سی پیک سے ہمیں دور کرنا چاہا۔ اس طرح کا چیلنج دے گا، نیب میں کام کر رہے ہیں، ان کو اب عمل میں لے کے پنجابی کو ملک دشمن ہے تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ان کے مسائل فنگر ٹپس پہ ان کو یاد رہتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شہزادہ عثمان طاہر، آپ دیکھ رہے ہیں PMLN سوشل میڈیا ٹی وی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کل پاکستان میں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر عمران خان صاحب کو کامیابی ملی۔ پارلیمنٹ کے اندر کامیابی جو ملی وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی، وہ کچھ روپوش طاقتوں کی مدد سے ملی، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اور پارلیمنٹ کے باہر جو عمران خان صاحب کو کامیابی ملی، جس طرح عمران خان صاحب کے کہنے پر عمران خان صاحب کے جو پی ٹی کے لوگ ہیں، ان کے لوگوں نے طوفان بدتمیزی کی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ساتھ، پاکستان کے سینئر موسٹ سیاستدانوں کے ساتھ۔ یہ تعلیم تھی عمران خان صاحب کی 126 دن کے دھرنے کے اندر، جو انہوں نے اپنے لوگوں کو سکھایا تھا، وہ آج 3 سال ہو گئے ہیں، اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں، اسی تعلیم کے اوپر وہ آگے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی 73 سالہ سیاسی تاریخ کے اندر ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آتی جس طرح آج عمران خان صاحب نے پاکستان کو تو تباہ کیا ہی کیا، لیکن پاکستان کے یوتھ کو انہوں نے جو تباہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے جس طرح ملک کے اندر تباہی لائی ہے، میں تو کچھ اس طرح کہوں گا کہ سر پر گولی لگنے سے ایک بندہ مر جاتا ہے اور گاؤں والے اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی آنکھ بچ۔ پاکستان کی معاشرت بیٹھ گئی، پاکستان تباہ اور برباد ہو گیا، پاکستان کی لوگ بے روزگار ہو گئے، پاکستان کے لوگ مہنگائی سے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن طریقے انصاف کے لوگ اور وہ روپوش طاقتیں کہہ رہی ہیں ہمیں فخر ہے اپنے وزیر اعظم پر کہ وہ بندہ ایماندار ہے۔ کیا یہ بندہ ایماندار ہے؟ یہ ساری دنیا جان چکی ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام بھی اسی چیز مذمتی پروگرام ہے، جس طرح ہم نے کل کا پروگرام کیا تھا پارلیمنٹ کے باہر جو پی ٹی اے کے کرائے کے گنڈوں نے جس طرح طوفان بدتمیزی کی مسلم لیگ نون کے قائدین کے ساتھ، آج کا پروگرام بھی ہم نے اسی مذمتی پروگرام رکھا ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں مسلم لیگ نون کے تمام وہ ورکر رہنما ہیں جو 24 گھنٹے مسلم لیگ نون کے لیے کام کرتے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھوڑنا مسلم لیگ نون ہے، جو 24 گھنٹے آپ سوشل میڈیا پر ان کو دیکھتے ہیں، سارے ہی بہت قابل احترام ہمارے بھائی ہیں۔ اور بالخصوص ہمارے ساتھ وہ مجاہد موجود ہیں ناظرین کہ کل پارلیمنٹ کے باہر جب مسلم لیگ نون کی قیادت کے اوپر طوفان بدتمیزی کر رہے تھے تو وہ مجاہد وہاں پہنچے اور جنہوں نے آ کر احسن اقبال صاحب کے پیشانی سے جو ہے وہ بوسہ لیا اور ایک صدا جو ہے وہ فضا میں گونج لگائی اور بعد میں نعرہ گونجا کہ مسلم لیگ نون زندہ باد، میاں نواز شریف زندہ باد۔ میری مراد جناب عبید عباسی صاحب رہنما مسلم لیگ نون راولپنڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کریں گے۔ عابد عزیز صاحب لاہور سے رہنما مسلم لیگ نون، طارق مغل صاحب لاہور سے مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، عبد الرحمان بٹ صاحب گجرانوالہ سے مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، سعود بٹ صاحب فیصل آباد سے مسلم لیگ نون کے رہنما ہے۔ ہمیں ابھی وہ بھی سب دوست جوائن کریں گے۔ ناظرین، آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے ناظرین میں ایک کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو پارلیمنٹ کے باہر جس ٹائم پی ٹی آئی کے کرائے کے لوگوں نے پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے کہنے پر جو طوفان بدتمیزی کی تھی جس طرح ناظرین، لیکن اس کے بعد فوراً ہی بعد وہ مجاہد اپنے دوستوں اپنے ببر شیروں کے ہمراہ ادھر پہنچے، عبید عباسی صاحب، اور کس طرح جذبے کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ احسن اقبال صاحب کی پیشانی کا
بوسہ لیا اور ساتھ ہی جب نعرہ بلند کیا فضا کے اندر تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہاں سے بھاگنا جو ہے وہ پڑ گیا. میں وہ کلپ دکھاتا ہوں پھر آپ کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین. جی السلام علیکم, ویلکم ٹو شو سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام عثمان بھائی, سب سے پہلے ایک مرتبہ پھر میں آپ کا اور ویئرز کا شکر گزار ہوں, بالخصوص جس طرح آپ پروگرام کر رہے ہیں اور آپ کے بہترین پروگرام جاری ہیں. اللہ آپ کو مزید کامیابیاں دے اور جماعت کی خدمت کی توفیق دے. آپ کا شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. واسی صاحب سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں یہ کل پارلیمنٹ کے باہر جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں نے طوفان بدتمیزی کی تھی مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ, پاکستان کے سینئر موسٹ سیاستدانوں کے ساتھ, اور اسی وقت آپ کو جیسے معلوم ہوا تو آپ نے ہمیں جو پتا چلا کہ آپ نے اسی ٹائم سارے کام جو ہے وہ چھوڑ چھاڑ کر ادھر پہنچے اور آپ نے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. وہ ذرا پلیز ہمیں بتائیں ذرا کیا واقعہ ہوا تھا. جی, جو ہی مجھے جب کل ایک کیمرہ مین ہے میرے دوست ہیں اور جیو نیوز سے, انہوں نے مجھے ٹیلی فون کر کے اس بات واقعے کی اطلاع دی تو میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا اپنے گھر سے. تو میں نے فوراً ایک ویڈیو میسج جاری کیا جو آپ نے دیکھا, ویئرز نے دیکھا, کہ تمام کارکنوں کو کہا کہ آپ پہنچیں, کیونکہ جب عزتوں جی صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے میرے خیال سے, لیکن آپ کنٹینیو رکھیں, ابھی ٹھیک ہو جاتا ہے. پاکستان میں یہ نارمل ہے, چلتا رہتا ہے یہ سلسلہ نیٹ خرابی کا. جی سر. عبید بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے سر. جی میرے خیال میں کوئی نیٹ کا ایشو ہے. تو جب میں وہاں پہ پارلیمنٹ کے باہر پہنچا تو وہاں پہ مجھے کارکن نظر نہیں آئے پی ٹی آئی کے, بلکہ گنڈے نظر آئے, گنڈے. کیونکہ کارکن ہوتے ہیں وہ تو نظریات کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں, وہ تو گفتگو شنید سے معاملات کو طے کرتے ہیں. ہم نے پیپلز پارٹی کے بھی کارکنوں کو دیکھا, گفتگو سے ہماری ان سے ڈیبیٹ ہوتی ہے, لیکن مجھے وہاں پہ کچھ پلانٹڈ گنڈے نظر آئے, گنڈے. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ بولیں سر, آواز آ رہی ہے سر. جی عبید بھائی. عبید صاحب عبید بھائی آپ کی آواز ذرا کٹ رہی ہے. آپ پلیز ذرا جو ہے وہ اپنی آواز کو ٹھیک کریں سر پلیز. عبید بھائی آپ کی آواز آپ کو میری آواز آ رہی ہے عثمان بھائی؟ جی سر ابھی آ رہی ہے. جی سر کیا بتا رہے تھے آپ سر؟ تو میں ذکر کر رہا تھا جب میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پہنچا تو وہاں پہ میں نے پی ٹی آئی کے کارکن نہیں دیکھے بلکہ گنڈے دیکھے, گنڈے جنہوں نے ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید مسلم لیگ نون کا کارکن اور نواز شریف کا کارکن ڈر جائے گا. وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ نواز شریف کے کارکن شیر ہیں, شیر. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہاں پہ جب میں پہنچا اور میرا وہ ویڈیو کلپ وائرل ہوا اور جی عبید بھائی آپ کی آواز پھر رک رہی ہے, آپ ذرا پلیز اپنا نیٹ چیک کریں. عبید صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے سر. عبید بھائی ذرا اپنا نیٹ چیک کریں پلیز.
عبید بھائی लगता है हम جی عبید بھائی ذرا چیک کریں پلیز اپنا نیٹ. جی ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان کے اندر یہ نارمل ہے نیٹ کی پرابلم. جی عبید صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو سر؟ جی سر. جی جی تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جب وہ گنڈے ہم نے نعرہ لگایا وہاں پہ وزیر اعظم نواز شریف تو جی عملی طور پہ میدان سے بگایا. جی عبید باسی صاحب دوبارہ ذرا بات کو کنٹینیو کریں کہ جب آپ کو کیسے پتا چلا کہ پارلیمنٹ کے باہر جو ہے وہ ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، یہ ذرا شروع سے ذرا بتائیں. جی میرے ایک دوست ہیں، بڑے ایک درینا ساتھی ہیں، راجہ نعمان ان کا نام ہے، جیو نیوز سے ان کا تعلق ہے. تو انہوں نے مجھے ٹیلی فون کر کے بتایا، فوری طور پہ بتایا. اور جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو میں تقریباً 10 منٹ کے اندر اندر اس واقعوں کے ڈسٹینس تھا تو میں نے اپنی گاڑی جی عبید صاحب جس سے دیگر کارکنان تک بھی اس واقعے کا علم ہو گیا. تو اس کے بعد ہم وہاں پہ 10-15 لوگ پہنچے اور وہ جو گنڈے تھے پلانٹڈ تھے، سینکڑوں کی تعداد میں تھے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک شیر سینکڑوں گنڈوں پہ حاوی رہا اور سینکڑوں گنڈوں کو ہم نے وہاں سے بگایا. ہم 10-15 تھے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان گنڈوں کو ہم نے نہ صرف وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کیا بلکہ ہمارے آنے سے پہلے شاہد خاقان عباس جی جی باسی صاحب آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے، ذرا پلیز ذرا چیک کر لیں نیٹ، کیونکہ یہ پاکستان میں نیٹ کی بہت پرابلم رہتی ہے آئے دن. جی جب سے یہ حکومت آئی ہر چیز کی پرابلم ہے شہزادہ صاحب، ہر چیز کی پرابلم ہے. اس کو بھی عمران فوبیا ہوا ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ نیٹ بھی ٹھیک ہوگا. یہ سب معاملات تب ٹھیک ہوں گے جب نواز شریف اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا. اور دوسرا آپ نے بوسہ لیا تو بوسے لینے کی 2 وجوہات تھی. پہلی وجہ تو میں یہ سمجھتا ہوں احسن اقبال جن کا تعلق جب آپ پارٹی رہنماؤں کا نام لیتے ہیں ساتھ ہی نیٹ کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے سر. آج ان کو سخت تکلیف ہے، آج یہ تکلیف میں. بالکل ایسے ہی ہے. چلے ہم نے بھی کون سا چھوڑنا ہے سر، ہم نے بھی کچھ کون سا چھوڑنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم بات اپنی کنٹینیو رکھتے ہیں. جی آپ بتائیں سر کیا کہہ رہے تھے آپ؟ جی تو میں نے کہا احسن اقبال کا جو بوسہ لینا تھا اس کے پیچھے 2 وجوہات ہیں. ایک تو ان وہ جماعت کے نظریاتی سپاہی ہیں جنہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ وفا کی ہے، وفا کی علامتیں کھڑے رہے. شاہد خاقان آواز آ رہی ہے سر؟ جی آواز آ رہی ہے. لگتا ہے میرا گھر بنی گالا کے بالکل قریب ہے تو اس کو بنی گالا. جی وہ بنی گالا کا آپ نے نام لیا اور آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے. بالکل آپ نے بنی گالا کا نام لیا، آپ کا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا. آپ 2 دفعہ پڑھے لاہور. یہ بنی گالا کے قریب میرا گھر ہے تو اسے ہوا بھی میرے نیٹ کو بنی گالا کی لگ گئی ہے. پورے پاکستان کو ہوا لگی ہوئی ہے اور بلکہ بنی گالا کو بھی کتنے چلی ہے، بنی گالا چلی ہے. وہ عابد صاحب کہہ رہے ہیں جنجی کتنے چلی ہے. عابد بھائی کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھا ٹائم گزرا. یہ ہر پیشی میں قائد کے لاہور سے آتے تھے، ہم اسلام آباد ہوتے تھے. تو اللہ کے فضل و کرم بالکل بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے سر، بالکل ایسی ہے. عابد بھائی کے جو نعرے ہیں وہ ماشاءاللہ پورے پاکستان میں ویسے بھی مشہور ہیں. اور جب قائد کے تک ان کی آواز جاتی تھی ان کے نعروں کی اور ہم جواب دیا کرتے تھے اسی جذبے کے ساتھ تو یقیناً ایک سحر طاری ہو جاتا تھا. چاہے وہ پنجاب ہاؤس میں ہوں، چاہے وہ نیب کورٹ میں ہو، اور وہ ججز سنتے تھے وہ نعرے پاکستان کی قوم سنتی تھی. تو انشاءاللہ کل ہم نے بھی جب میں وہاں پہ پہنچا تو ہزاروں وہ گنڈے وہاں موجود تھے. وہاں پہ میں نے جاتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ میں نے لگایا. جی آپ نے لگایا اور ساتھ ہی نیٹ جو ہے وہ آف ہو گیا. آپ نے لگایا اور نیٹ بگایا. جی آپ نے لگایا اور نیٹ بہایا. یہ آپ کے ساتھ شاعر بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے شاعرانہ طریقے. عبید بھائی آپ کا نیٹ نہیں چلے گا بھائی جان. آج کا ہمارا جو پروگرام ہے نا وہ نیٹ خراب ہونے کی وجہ سے بیچارے سعود بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ. سعود بٹ صاحب
अब्दुल रहमान साहब कहते हैं मैं उनकी ही कर रहा हूँ, नेट ही नहीं पे ऑन होता। तो किसी का कसूर तो नहीं है आज इसमें। मेरे ख्याल में इंटरनेट इतने का कोई प्यारे लोग खास थे हमारे साथ, आज बहुत बड़ी तादाद में लोग देख रहे थे आपको, लेकिन नेट खराब होने की वजह से जो है वो ऐसे हो रहा है। लेकिन चले ट्राई करते हैं। जी अवैध भाई, अभी आवाज आ रही है आपको सर? जी जी। तो बात शहजाद उस्मान साहब अब आते हैं हम, जो इंशाअल्लाह आज भी मैं मैडम के साथ मरीम नवाज साहिबा ने एक तवील मीटिंग की है चकशेजाद में, मैं उधर मौजूद था खुद भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत वहां पे मौजूद थी। तो जी ये हाँ, ये फिर आपने मोहतरमा का नाम लिया है और नेट आपका स्टॉप हो गया। हैरान कुन बात है कोई मसला कोई मसला। अब सब ठीक फरमा रहे हैं, कोई मसला नहीं। वो कहते ने कि मैनू एक ना मैनू मुहावरा याद आ गया पंजाबी च, हुण सुन लो। कहते सौन दा महीना चढ़िया ते कोठा चोपिया, साडी वाड़ी आई ते घुगुड़ हो पिया। ये घुगू किसको कहा है? ये बनी गाला वाले को तो नहीं कह दिया? बनी गाला वाला कोई गाना है, वो रो रहे हैं ना, जब आप आते हो तो वो उनको वो तकलीफ हो रही है, को बैदबाजी। आबिद भाई उनको देखा था आपने जब असम्बली से वो एतमाद का नाम नेहाद वोट ले रहे थे, जिसे कह रहे थे ये चोर हैं ये। जी जी जी, मैंने भाईजान सारी एक्टिविटी देखी है, आपको भी देखा है, सबको देखा है। माशाल्लाह सब बब्बर शेर हैं आप, कोई भी बेकार नहीं है, सब बब्बर शेर हैं। सबकी अजमत को मोहब्बत को सलाम। बिल्कुल ऐसी है जी। उबैद भाई आपको आवाज आ रही है? आबा साहब आपकी तरफ आते हैं सर। आप कोई कलाम सुनाएं जी अच्छा सा, हमारी नाजरीन को मुस्लिम लीग नून की जो है वो बात सुनाएं। अच्छा, मतलब कलाम, अब बातें तो बहुत हैं, कलाम से याद आ गया कि बाबा बुल्ले शाह सरकार का कलाम सुना दो। जी 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 सर, फिर उसके बाद हो सकता है प्रोग्राम ये हमारा चलना शुरू हो जाए, क्योंकि नहीं तो उबैद साहब का नेट तो चलेगा नहीं। सऊद भट्ट साहब भी ट्राई कर रहे हैं, रहमान भट्ट साहब, अब्दुल रहमान भट्ट साहब भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जी सऊद भट्ट और अब्दुल रहमान भट्ट को तो बड़ा मिस कर रहे हैं। माशाल्लाह हमारे इधर मुनीब जट हैं, वो भी इधर इस्लामाबाद में थे, बड़े अच्छे भाई हैं। प्रोग्राम तो आने तो पहले ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਦਕਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। बिल्कुल मन्नू देना चाहिए ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ। हाँ बिल्कुल। लेकिन कोई गल नहीं, इंशाल्लाह ताला फिर से अल्लाह खैर करे जिस दिन नेट। उबैद भाई जी ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਨੈਟ ਸਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਰਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। अच्छा अब सब कलाम जरा सुनाएं जी हमारी नाजरीन को। जी तमाम नाजरीन जो दोस्त से बाप देख रहे हैं उनको, शहजादा भाई आपको, उबैद अब्बासी साहब आपको, और जो मेरे बट बरादरान बीच में नहीं है उनको भी बाबा बुल्ले शाह सरकार का कलाम डेडिकेट कर रहा हूँ। सरकार आखदे ने कि नहीं लंघदा वक्त विछोड़े दा, नहीं लंघदा वक्त विछोड़े दा, बिन यार गुजारा कौन करे। दुनिया तो किनारा हो सकदा, यारां तो किनारा कौन करे। एक दिन होवे ते लंघ जावे बुल्लिया, सारी उम्र दा गुजारा कौन करे। वाह वाह सुभान अल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त सर, क्या बात है। तो सरकार आखदे ने बाबा बुल्ले शाह जी ताड़ी नजर शहजादा भाई सर प्लीज। सरकार आखदे ने बाबा बुल्ले शाह कि तू वार दे हर शय यार अपने तो, जे तू जितनी इश्क दी बाजी, यार दे ना दी तू नीयत खलो जा ते तेनू आखन इश्के नमाजी। तेरा यार कवे तू घुंगरू पाला ते भावे फतवे लावन काजी। बुल्ले शाह जग रुसदा ते रुस जावे, असा यार नू रखना राजी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। अब सब क्या बात है आपकी सर, क्या बात है सर। बहुत बहुत ज्यादा दोस्त नीचे सर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं सर। क्या बात है सर। कोई और सुनाए अब सब, आज का प्रोग्राम आपके नाम। ये पार्लियामेंट के जो बाहर इन्होंने तूफाने बदतमीजी की है, उनको अच्छे तरीके से मैसेज दें आप अपने कलाम के जरिए। बाबा बुल्ले शाह सरकार आखदे ने कि बुरा बंदा मैं लब्बन टुरिया, बुरा बंदा मैं लब्बन टुरिया ते बुरा ना लभ्या कोई, अपने अंदर जाती मारी मैथों बुरा ना कोई। वाह वाह क्या बात। बाबा बुल्ले शाह सरकार आखदे ने फुल्लां दा तू अतर कढ़ा, फुल्लां दा तू अतर कढ़ा ते अतरां दा फिर कढ़ दरिया। वाह। दरिया दे विच तू रज के नहा ते मछलियां वांगू ताड़ियां ला।
फेर नहीं तेरी बो मुकनी बंदिया पहले अपनी मैं मुका। वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। ओके ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, क्या बात। उबैद भाई आपको आवाज आ रही है सर मेरी? जी आवाज आ रही है। और मैं शहजादा उस्मान साहब, मैं एक बात जरूर यहाँ पे कहना चलूंगा कि जो कल वाकयात हुए हैं, ब्लैक डे हम इसे समझते हैं, एक सियात दिन था पाकिस्तान की सियासत में। ये जो नासूर आया है जिसने अपने हम तो नजरियात की बुनियाद। लो जी अबू साहब फिर काम पे आ गए थे। बहुत जुल्म है, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जुल्म के ये ज़ाब्ते अगर पाकिस्तान की सियासत में हमने इस जुल्म का इंतकाम लेना है जो मरियम औरंगजेब के साथ हुआ, जो दीगर क़यादत के साथ हुआ, तो हमें लॉन्ग मार्च में भरपूर निकलना होगा, लॉन्ग मार्च में शिरकत करनी होगी। और सिर्फ अकेले नहीं आना लॉन्ग मार्च में, हमें अपने इसके लिए मोबिलाइजेशन मुहिम चलानी होगी, बाजारों में जाना होगा, ताजरों से मिलना होगा, और ये काम हमें अपने ऑन पे करना होगा। और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को अब जागना होगा, और जो हमेशा हर वक्त हर दो बिल्कुल ऐसी है। वैसा आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आपका नेट जो है वो आपका साथ नहीं दे रहा। बल्कि मैं तो रोज प्रोग्राम करता हूँ पाकिस्तान में, होता ही ये है कि नेट की प्रॉब्लम चलती रहती है, जितनी भी कोशिश कर लें। जी क्या कह रहे हैं सर, आप क्या मैसेज दे रहे हैं अवैध भाई? तो मेरा मैसेज यही है कि हमें कारकुनान को अब लॉन्ग मार्च की भरपूर, क्योंकि 26 तारीख में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो इसको मद्देनजर रखते हुए आज भी हमारी मुस्लिम लीग नून का जो इजलास था इस हवाले से भी उसमें कुछ फैसले किए गए हैं। तो हमें अब भरपूर तैयारी यकीनन कारकुनान कर रहे हैं। जी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उबैद भाई 26 तारीख का जो लॉन्ग मार्च है, आपको लगता है कि अवाम उसी जोशो जज्बे से बाहर निकलेगी जिस तरह आप फरमा रहे हैं? मैं कहता हूं जोश और जज्बे के साथ उस्मान भाई गुस्से से भी निकलेगी, और जो गुस्सा है वो महंगाई और बेरोजगारी और इस मुल्क का जो हाल कर दिया इन्होंने, इसके खिलाफ है। तो अवाम निकलेगी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन अवाम को निकालने के लिए जो हमारा किरदार है वो हमें अदा करना होगा, और उसे हमें गाफिल नहीं होना होगा। ये नहीं कि मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में आज इस्लामाबाद में भी देखें, एक भरपूर मुहिम शुरू कर दी है हमने, और हम मार्केट्स में गए, मुताजिर कम्युनिटी से मिल रहे हैं, और इसी हवाले से रावलपिंडी में भी हुए हैं और दीगर पाकिस्तान के शहरों में भी। तो मेरी तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है, और जो मियां नवाज शरीफ के नजरिए को समझते हैं, बयानिए को समझते हैं, उसके साथ सपोर्ट करते हैं, पीडीएम के साथ खड़े हैं, तो उस दिन हमें बजाय सोशल ऐप में घर में बैठ के देखें, हमें खुद निकलना होगा और मैदान अमल में निकलना होगा। और ये 26 तारीख वो दिन होगा जब पाकिस्तान हमें फैसला करना है, हमने पाकिस्तान की तकदीर को बदलना है, हमने मियां नवाज शरीफ का साथ देना है, या फिर हमने घर में बैठ के जिंदाबाद और मुर्दाबाद करना है। तो ठीक है, घर में कुछ काम होते हैं जो घरों में बैठ के किए जाते हैं, और कुछ काम है जो जिसके लिए मैदान अमल में निकलना जरूरी है। तो मैं उस सिलसिले में अपनी जो व्यूअर्स हैं उनसे कहूंगा, मैसेज दिया है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है, पाकिस्तान की तालमियत की बात है, पाकिस्तान की मुआशरत की बात है। अवाम जो जिस तरह परेशान हाल है, इस 3 सालों में तकरीबन अवाम परेशान हो चुकी है, अवाम बाहर निकलेगी। और हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को इस बंदे से जो है वो जान छूटे, और मुल्क जो है तरक्की के रास्ते पर चले, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में चल रहा था। आबा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस गवर्नमेंट को, तो मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहूंगा कि या अल्लाह साडी सुन ले दुआ, नियाजी साडे मगरों ला। क्या बात है। देखे नहीं, शायराना अंदाज से आबद अजीज साहब ने भी ये बात कह दी कि या अल्लाह सुन ले साडी दुआ, नियाजी नू साडे मगरों ला। आटा महंगा हाय हाय, चीनी महंगी हाय हाय, असी मर गए भुखे हाय हाय, किनू दसीए किनू ढोईए, जीना महंगा मरना महंगा, भुखे ढिड प्यासे सीने, असी सड़ गए धुप्पे मर गए भुखे हाय हाय। अवाम ते भुखी मर गई शहजादा उस्मान भाई, अवाम बेबस से, सफेद पोश लोग बेबस ने, खुदकुशियां करन ते आए ने। इनू मदीना दी रियासत कहंदा है, अवाम निकलेगी, ताजर निकलणगे, हर पाकिस्तान दी मां बेटी बहन निकलेगी,
बुजुर्ग निकलेगा, बच्चा बच्चा निकलेगा इंशाल्लाह अल्लाह दे हुक्म दे नाल। मरियम इंशाल्लाह। नवाज या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी जंग नहीं लड़ रहे, 22 करोड़ आवाम दी जंग लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान लॉन्ग मार्च दे नाल जाएगा इंशाल्लाह ताला अल्लाह दे बिल्कुल हुक्म जी, दे। ऐसे ही है। अबद अजीज साहब आपका बहुत शुक्रिया, अवैध वासी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन आवाज हमारी कट रही थी, हमारा प्रोग्राम कुछ उस तरह चला नहीं। बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी स्टार्ट में आए, लेकिन बाद में आवाज खराब होने की वजह से चले गए। लेकिन अभी भी हमें सैकड़ों की तादाद में लोग देख रहे हैं। अबद अजीज साहब को चाहने वाले, सऊद भट्ट साहब को चाहने वाले, अब्दुलरहमान भट्ट साहब को चाहने वाले, तारक मुगल साहब को चाहने वाले। लेकिन पाकिस्तान में आपको नाज़रीन पता है कि नेट की प्रॉब्लम चलती रहती है। अबद अजीज साहब अगर आए हैं तो उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा, उबैद अब्बासी साहब अगर बात कर रहे हैं तो उनकी बात समझ नहीं आ रही, और दूसरे भाई नेट कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन उनका नेट कनेक्ट हो नहीं रहा। हमारा टाइम खत्म हो गया है। अभी हमें ज्वाइन कर लिया है राशिद नसरुल्लाह साहब ने, ये हमारी खुशकिस्मती है। जबरदस्ती हमने उनको बुला लिया है अपने प्रोग्राम में। नाजरीन, सऊद भट्ट साहब भी हमें कोशिश कर रहे हैं ज्वाइन करने की। राशिद भाई वेलकम टू शो सर, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत माशाअल्लाह। शुक्रिया जी आपका, आपके सारे दोस्तों का जो मौजूद है। वालेकुम बाकी अस्सलाम। सब वालेकुम अस्सलाम। आबिद राशिद अजीज भाई, साहब, जी आबाद अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सऊद भट्ट साहब और अब्दुलरहमान भट्ट साहब आधे घंटे से नेट को कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, नेट की कोई अच्छा प्रॉब्लम चल रही है सर। चले। तो आपने अवैध इतना वासी साहब वो हमारे साथ। जोर, मैं कहीं बैठा था लेकिन मैंने फिर कहा कि आपने अब बुलाया तो नहीं, मैं जान आ गया। मैंने सर आपसे, मुझे मोहब्बत है कोई कुदरती, तो मैंने गुस्से भी होना था अभी आप ना आते प्रोग्राम में। सदके जावा राशिद भाई मैं सर तो। राशिद भाई, सबसे पहले तो ये बताएं, कल जो पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ और पार्लियामेंट के बाहर जो कुछ हुआ, उसके मतलब क्या कहेंगे आप सर? जी बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप सब दोस्तों के साथ वैसे एक मोहब्बत शफकत का रिश्ता है, मेरी जान भी हाजिर है। पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ सारी दुनिया ने देखा। वो बेसिकली जो कुछ हुआ वो प्लान था एक रात पहले। ये मुमकिन नहीं है कि ना ही इतनी अथॉरिटी रह गई थी इमरान नियाजी की। 2 दिन पहले जो उसे बड़ी जबरदस्त किस्म की शिकस्त हुई थी हफीज शेख की सूरत में, तो ये उसके लिए मुमकिन नहीं रहा था कि वो इतने 170 या 172 या जितने भी उसके लोग थे, 164 थे, उनको वो एक जगह रख सकता, क्योंकि वो अपनी रिट खो चुका था। इमरान नियाजी जो था वो 1-2 दिन पहले, और उसका जो चेहरा उतरा हुआ था वो आपने उसकी जीत के बाद भी देख लिया होगा, तो हार के बाद उसका क्या रिएक्शन होगा। उसने अपने आकाओं से, अपने बड़ों से, अपने सिलेक्टर से जो उसे लेके आए, अपने अन्नदाताओं से, अपने जैसे कहते हैं कि जो उसके जो वालिद ग्रामी थे, जो उसके रूपोश रखते हैं अब्बा जो। हजूर थे, उनको उसने मुलाकात की। और ये तमाचा है जमहूरियत के मुंह पे कि आप दावा करते हैं नाम नेहाद कि हम वोट लेके आए पाकिस्तानी अवाम से, मुलाकात आप कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के सरबराह से। आपको शर्म नहीं आती? आप पार्लियामेंट जैसे अदारे को, आप वजीर आजम की जैसी कुर्सी को तौहीन करते हैं, आप उनसे मिलते हैं, उनसे आप अक्सरियत मांगते हैं, उनसे आप मदद मांगते हैं, उनसे आप हेल्प मांगते हैं, उनको कहते हैं कि मुझे बचाएं। आपको शर्म नहीं आती? आप तो दावा करते थे कि हम पाकिस्तानी अवाम के वोट से आए हैं। तो अवाम ने देखा, 22 करोड़ अवाम ने देखा, वो जिनके आशीर्वाद से आया, वो जिनकी इजाजत से आया, वो जिनके हुक्म से आया, उसी से वो मिला। उन्हीं 2 अशखास से वो मिला जिनके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 16 अक्टूबर को गुजरांवाले की तकरीर में नाम लिए थे। उन्हीं 2 से उसने इजाजत ली कि जनाबे वाला, आप मुझे लाए थे, आप मुझे बचाएंगे, मैं जा रहा हूं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ, क्या आप मुझे बचा सकते हैं? उन्होंने कहा बेटे जरूर हम आपको बचाएंगे, आप बेफिक्र हो जाए, हम आपके लोगों को बंद करके भी लेके आएंगे, हम आपके लोगों को कमरों में बंद करना पड़ा वहां भी बंद करेंगे, हम आपके लोगों को जहां कहीं किसी डरबे में बंद करना पड़ा हम इकट्ठा रखेंगे। आप मुझे बताएं, आप माशाल्लाह सारे साहब फरासत है लोग हैं, मतलब दानिश रखते हैं, क्या इमरान खान की रिट बची थी कि वो 170 या 172 या 164 लोगों को किसी एक जगह इकट्ठा कर पाता? तो हमें सब पता है कि ये इकट्ठा किसने करवाया, कैसे करवाया और इन लोगों को कैसे वोट दिलवाया गया, वो आप लोगों के सामने है। दूसरी बात आपने पूछी पार्लियामेंट के बाहर क्या हुआ है, तो ये हम एक जो है डेकेड से देख रहे हैं, जिसे डेकेड ऑफ डार्कनेस इमरान खान कहता है, हम भी डेकेड ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं उसको, कि पिछले 8-10 सालों में इमरान नियाजी ने जो इस कौम का हाल कर दिया है, कौम के बच्चों को, नौजवान नस्ल को जिस नहज पे ला के ये शख्स ने खड़ा कर दिया है, हम इसके सारे जुर्म माफ कर देंगे।
जो है इमरान नियाजी के पिछले जितने जुर्म है वो छोटे हैं। तारीख शायद इसके बाकी जुर्म माफ करे, लेकिन एक जुर्म इसका कभी जिंदगी में माफ नहीं होगा। आने वाली नस्लें इसको उस जुर्म पे माफ नहीं करेंगी। जो हमारी नौजवान नस्ल की तरबियत को तबाह किया इस शख्स ने, उनकी अखलाकियात को तबाह किया इस शख्स ने। इस शख्स ने सिखाया है कि आपने गाली देनी है, आपने जूती मारनी है, आपने थप्पड़ मारना है, लेकिन वो इन्होंने जो अपने लीडर से सीखा, जो कंटेनर पे सिखाया, वही उसके वर्कर्स ने कल सीखा। हमारी तरबियत जरा डिफरेंट है, हमारे कायदे ने हमें डिफरेंट सिखाया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम भी इनको जो है ना जी, वो ईंट का जवाब अब पत्थर से देंगे, और इंशाल्लाह वो वक्त आ चुका है। बिल्कुल ऐसी है राशिद भाई, जिस तरह आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि सीनियर मोस्ट पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं, शरीफुल नफ्स लोग, जिसमें शहद खान अब्बासी साहब साबका वजीर आजम पाकिस्तान रह चुके हैं, हसन इकबाल साहब और मोहतरमा हमारी मरियम औरंगजेबा साहबा, उनके साथ भी इस तरह बदतमीजी तो कोई हमने आज तक देखा नहीं है। सोच भी नहीं सकता कोई बंदा कि इस तरह धक्के मारे और इस तरह बाजू खींचे गए मलिक साहब का भी। और ये किस तरफ पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो है, हम भी नौजवान हैं, किस तरफ जा रही है, किस तरफ इमरान साहब लेकर जा रहे हैं इनको। और एक वजीर उनका, माजरत के साथ साथ एक वजीर उनका जो छोटा सा वाकया होता है तो उसी टाइम जो है वो टीवी पर आ जाते हैं और अपने कमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। इस वाकये के बाद कोई एक वजीर उनका नहीं आया, तो क्या कहेंगे उन वजीरों को जो इनके किराए के वजीर हैं? वो भी ये प्री प्लान था जी, ये प्री प्लान करवाया गया बाहर इनको, क्योंकि इमरान नियाजी जब प्राइवेट महफिलों में बैठता है, जब किसी जगह बैठता है, वो बड़ा खुश होता है ऐसे वाकयात से, वो बहुत फख्र महसूस करता है ऐसे वाकयात से। वो इनको टाइगर कहता है, वो इन जाहिलों को टाइगर कहता है जिनको अपने बड़े छोटे की तमीज नहीं है। जिनको आप तो बात कर रहे हैं ना, शरीफुल नफ्स शाहिद खान अब्बासी की, मरियम औरंगजेब साहबा की, मुसद्दक मलिक साहब की, ये तो शरीफुल नफ्स अशखास है, खानदानी लोग हैं। ये शख्स ना इसका कोई खानदान है, ना इसकी कोई तरबियत है, ना इसको अपनी बेटी का पता, ना इसके अपने बेटों का पता, ना इसको पता वो इस्लामी तरबियत ले रहे हैं, वो क्रिश्चियन तरबियत ले रहे हैं, वो यहूदी तरबियत ले रहे हैं। इस शख्स को कुछ नहीं पता। इस शख्स को अगर कुछ पता होता तो उस्मान भाई आज 22 करोड़ अवाम की ये हालत होती। इसको बड़ी खुशी, ये समझ रहा है ये क्रिकेट का ग्राउंड है जहां ये गालियां भी निकाल लेता है, जहां पे बदतमीजी भी कर लेता है, जहां इसको कोई तहजीब अखलाक नाम की कोई चीज नहीं है। तो जो इसने कंटेनर पे तरबियत अपने नौजवान नस्ल को दी, वो आपके सामने है। उनका उन्होंने मुजाहरा कर दिया। कभी वो उसको मजहब के नाम पे ले जाता है, कभी वो उसको पेशावरी चप्पल पे ले आता है, कभी उसको थप्पड़ पे। हाथ हमारे भी हैं, हाथ हमारे भी हैं। अब ये हाथ उठेंगे और इसके जब टाइगर बने फिरते हैं, इनको भागने की नौबत नहीं आएगी। हम अगर हमारे कायदे ने हमें इजाजत दे दी तो इनको जो है भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये अब्बासी साहब को मैंने देखा कल माथा चूम रहे थे, तो ये हमारे लोग माथा चूमने वाले हैं। लेकिन अगर वक्त आया तो हम ये माथा फोड़ भी देंगे इनके। इनको पता नहीं है, ये जानते नहीं है असल शेर ये लोग हैं। असल शेर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कारकुन है। ये शायद किसी भूल में बैठे हुए हैं। बिल्कुल 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 आपने दुरुस्त कहा। अच्छा, हमने एक छोटा सा मैसेज आपका देखा नसरुल्लाह भाई, आपने सोशल मीडिया पर मैंने भी वो शेयर किया। वो जरा कलाम हमारी नाजरीन को सुना दें प्लीज, जो सेनेट इलेक्शन के बाद जो कुछ। आई एम नॉट श्योर मेरे पास वो मौजूद हो, अगर हुआ तो मैं जरूर आपको सुना दूंगा। आप अपने दिल की किताब खोल लें, उस दिल के अंदर बहुत कुछ है। अच्छा, वो जो कल लिखा मेरा ख्याल शायद आप उसकी बात कर रहे हैं, वो जो सिलेक्टर के लिए। जी वो मैं आपको सुना दूं, मेरे पास वो पड़ा है। वो कुछ इस तरह से था कि जिस तरह ये हारा था और उसके बाद किस तरह इसके अब्बू ने उसको वादा किया कि आपको जिताएंगे, तो वो उसके ऊपर कुछ चंद अल्फाज थे कि 2 दिन से रो रहा है ये अब्बा, अपने निक्के को कह रहा है जी, 2 दिन से रो रहा है, मुझे निक्के को हंसाना है। ओए आर्डर है ये मेरा, इसे एतमाद दिलाना है, शिकवे इसके बाद करो सब, और मेरे निक्के पे एतमाद करो सब। आज गिनती करनी पूरी है, फिर बूट बहुत जरूरी है। जो गिनती करनी पूरी है, फिर बूट बहुत जरूरी है। अब्बा हूं मैं, डांट के रखूं या होटल में बांध के रखूं, जितना चाहे गंद करा लूं और मोबाइल भी तुम्हारे बंद करा लूं। आज की रात हिले ना कोई और कमरे में भी मिले ना कोई, एतमाद का ठप्पा मेरे निक्के पे लगा दो, माने जो ना कोई उस पे नैब चढ़ा दो। चाहूं तो अभी धुंध में घुमा दूं तुझको, चाहूं तो अभी ना अहल बना दूं तुझको, चाहूं तमाम उम्र तुझे खार करूं मैं, और चाहूं तो एक राई का पहाड़ करूं मैं। क्योंकि 2 दिन से रो रहा है, मुझे निक्के को हंसाना है। और आर्डर है ये मेरा, उसे एतमाद दिलाना है।
जो वादा अब्बा जी ने किया वो पूरा कर दिया, उन्होंने बंदे भी इकट्ठे कर लिए, वो सारा कुछ कर लिया जी। सब कुछ कर लिया, बिल्कुल ऐसे ही है। नसरुल्लाह भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप अभी मीटिंग में थे, आपको मैंने फोर्स किया, आप भी आ गए। वैद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, अबल साहब आपका भी शुक्रिया, और जो दोस्त हमें ज्वाइन कर रहे थे लेकिन नेट खराब होने की वजह से, अब्दुर्रहमान भट्ट साहब आपने भी ट्राई की, आपको भी शुक्रिया। सऊद भट्ट साहब आपको फिर साथ लेंगे इंशाल्लाह, आपने भी 3 दफा 4 दफा ट्राई की, आपका भी नेट नहीं चल रहा। पाकिस्तान में सब कुछ खराब चल रहा है, तो ये नॉर्मल है कि नेट की प्रॉब्लम भी चलती रहती है। सर इंशाल्लाह ताला दोबारा जब तक अल्लाह खैर फरमाए कि जब तक इनके कोई वजीर आकर माजरत नहीं करते तब तक हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे और इनके बिहाइंड जो है पूरी दुनिया को दिखाते रहेंगे। जिस तरह इन्होंने तूफाने बदतमीजी की है, हम अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके इस पर अपने कारकुन को, अपने रहनुमा को साथ लेकर बात करते रहेंगे। आप सब का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला कल दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। राशिद भाई लव यू। आबिद अजीज भाई बहुत शुक्रिया, आपका भी, उस्मान भाई आपका भी, उबैद बासी बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई। राशिद भाई लव यू। आखिर में इन्होंने मेरा नेट खोल दिया या बंद है, चल रहा है, आवाज आ रही है? चल रहा है, चल रहा है। अगर कुछ कहना चाहते हैं ये जो डबल शाह है ना पाकिस्तान का नया डबल शाह, जानते हैं आप इसे? एक जाती दफा एक मैसेज दे अभी नसरुल्लाह भाई के भी चैनल पर, इंशाल्लाह ये हमारा मैसेज है इस्लामाबाद से तमाम व्यूअर्स को, आखिरी मैसेज है कि पाकिस्तान के डबल सिलेक्टेड डबल शाह को इंशाल्लाह इक़्तिदार के ऐवानों से मुस्लिम लीग नून के कारकुनान इंशाल्लाह नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की क़यादत में, पीडीएम की क़यादत में इंशाल्लाह निकालेंगे, और इंशाल्लाह कौम को बहुत जल्द ये खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह। जो इनकी कपकपाहट है ना, जो उनसे ये जो हरकत ये कर रही है, इनके आखिरी दिनों की निशानी है, तो इंशाल्लाह ये जा रहे हैं, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अबद भाई आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मेरा एक ही मैसेज है, अखां विच घट्टा पैन नहीं देना, नियाजी तेनू रहन नहीं देना इंशाल्लाह ताला। नसरुल्लाह भाई आप भी कोई एक मैसेज दें इनको। मैसेज बस बहुत सादा है जी, कि बाज आ जाएं, नियाजी साहब बाज आ जाएं, और जो हरकतें आप ओछी कर रहे हैं इनसे भी बाज आ जाएं, जो गंदी हरकतें आप कर रहे हैं उनसे भी बाज आ जाएं। अगर हम अपने कायद के हुक्म के ताबे हैं, हमें अगर इजाजत मिल गई, यकीन जानो मिस्टर नियाजी आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी, ना पहाड़ों पे, ना मैदानों में, ना सिंध में, ना पंजाब में, ना बलोचिस्तान में, ना जीबी में, ना कश्मीर में, आपको कहीं भागने की जो है वो जगह नहीं मिलेगी। शेर सामने आ गए तो ये गिदड़ों को जो है ना छुपने के लिए बिल नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको वार्निंग है, बाज आ जाओ और जो है ना इन ओछी हरकतों से परे रहो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। आप सब आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन मैं इधर बात ऐड करना चाहता हूं कि मुझे भी बहुत से मैसेज आए हैं कि अगर आपने चैनल चलाना है तो कुछ कड़ियां जाके रावलपिंडी की तरफ ना मिलाया करें। मैं उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूं, ये चैनल जो है ये मुस्लिम लीग नून का चैनल है, और ये मैंने अपने नाम पर चैनल नहीं बनाया, ना ही मैं इस चैनल को एज ए बिजनेस ले रहा हूँ। मैं एक मुस्लिम लीग नून का अदना सा वर्कर हूँ, और मैं इस वर्क को जो है वो आगे चलाना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान के जो अपनी पार्टी का जो बयानिया है उसको ओवरसीज तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ये अपना छोटी सी अदना सा जो है मैंने स्टेप उठाया है। मुझे कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुस्लिम लीग नून के चेले हैं, मुस्लिम लीग नून के चाहने वाले हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हम मुस्लिम लीग नून के लिए दिन रात काम करते रहेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा आपसे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। तो ये पार्टी फंडिंग केस है, ये फैसल वाकड है, ये क्या है? ये